بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني الحمد لله آج ہمارا علم میراث کا یہ تیسرا سبق ہے، اور اس سے پہلے ہم نے علم میراث کورس کا خلاصہ جو ہے، خلاصۃ المیراث، وہ پڑھ لیا، اور معرفت الورثہ یعنی ورثہ کی پہچان، اس میں ہم چل رہے ہیں۔ اور ورثہ کی تین قسمیں ہم نے پڑھی تھی: ذوی الفروض، عصبہ، ذوی الارحام۔ ذوی الفروض کے پھر بتایا تھا کہ کل 12 ہے، 4 مرد اور 8 عورتیں۔ 4 مردوں میں پھر ہم نے باپ کا جو حصہ ہے وراثت میں جتنا بنتا ہے وہ آپ کو بتا دیا۔ آج انشاءاللہ ہم دادا کا وراثت میں جو حصہ بنتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ دادا کا وراثت میں جو حصہ بنتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دادا کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں۔ عربی زبان میں دادا کے لیے جد صحیح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دادا کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جد صحیح۔ تو گویا کہ جد کی دو قسمیں ہیں، جد کی دو قسمیں ہیں، ایک جد صحیح اور دوسرا جد فاسد۔ جد صحیح کا مطلب ہوتا ہے جس کا میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ آئے، یعنی میت اور جد کے درمیان مؤنث کا واسطہ نہ ہو تو اسے جد صحیح کہتا ہے۔ جیسے ابو الاب، ابو الاب، ٹھیک ہے، یہاں پہ مثال سمجھ لیتے ہیں۔ ابو الاب جو ہے یہ دادا ہے، دادا، ٹھیک۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ درمیان میں اب دیکھیں، میت کے اور بابا کے، دادا کے درمیان جو ہے باپ کا واسطہ ہے۔ باپ کا کیا ہے؟ واسطہ ہے، مؤنث کا واسطہ نہیں ہے، مذکر کا واسطہ ہے۔ اور جد فاسد کہتے ہیں جس کا میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں ماں کا رشتہ واسطہ آ جائے، مؤنث کا واسطہ آ جائے۔ او ابو الام، ماں کا باپ، جس کو ہم نانا کہتے ہیں۔ اب میت کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑنے میں درمیان میں کون آ رہا ہے؟ ماں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ آ رہا ہے، تو اس کو جد فاسد کہتے ہیں۔ تو ذوی الفروز میں سے صرف جد صحیح ہے۔ ذوی الفروز میں کون ہے؟ جد صحیح ہے۔ جد فاسد جو ہے یہ ذوی الفروز میں سے نہیں ہے۔ جد فاسد جو ہے یہ ذوی الفروز میں سے نہیں ہے۔ جد صحیح جو ہے یہ ذوی الفروز میں سے ہے۔ اس بنیادی بات کو آپ لوگوں نے سمجھ لینا ہے کہ جد صحیح یعنی دادا جو ہے ذوی الفروز میں سے ہے، نانا جو ہے وہ ذوی الفروز میں سے نہیں ہے، نانا ذوی الفروز میں سے نہیں ہے۔ تو ہم یہاں پہ کس کی وراثت پڑھیں گے؟ جد صحیح یعنی دادا کی۔ دادا کو کن صورتوں میں وراثت میں حصہ ملتا ہے، کن صورتوں میں نہیں ملتا؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو دادا کے کل 4 احوال ہے، جس طرح ہم نے پڑھا تھا باپ کے 3 احوال تھے۔ باپ کو چھٹا حصہ ملتا تھا، صرف چھٹا حصہ۔ اسی طرح باپ کو چھٹا حصہ بھی ملتا تھا، عصبہ بھی بنتا تھا، اور باپ صرف عصبہ بنتا تھا۔ اسی طرح دادا کے کل 4 احوال ہیں۔ دادا کے کل کتنے احوال ہیں؟ 4 احوال ہیں۔ 3 تو وہی جو باپ کے تھے، جو باپ کے 3 احوال تھے، یعنی چھٹا حصہ ملنا، چھٹا پلس عصبہ، صرف عصبہ، وہ دادا کی بھی ہے، صرف ایک حالت میں فرق ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ تو دادا کی پہلی حالت آپ دیکھ لیں، محجوب، یعنی دادا جو ہے محروم ہو جائے گا۔ محجوب سے مراد محروم ہونا، وراثت میں حصہ نہ ملنا۔
महजूब से मुराद क्या है? महरूम, यानी विरासत में हिस्सा नहीं मिलना। दादा महरूम कब होता है? बाप अगर मौजूद हो तो दादा को कुछ नहीं मिलता। बाप अगर मौजूद तो दादा को कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा, दादा की छुट्टी हो जाएगी। ये पहली हालत है जो मुख्तलिफ है। बाकी जो तीन अहवाल है वही है जो दादा बाप के थे। कौन कौन से अहवाल थे दोबारा वजाहत कर देता हूँ। दादा को छठा हिस्सा मिलेगा, सुदुस मिलेगा 1/6। इसी तरह दादा को सुदुस भी मिलेगा प्लस आसबा भी होगा। नंबर 4, दादा सिर्फ आसबा होगा। पहली हालत जो है वो मुख्तलिफ है कि अगर बाप मौजूद है दादा को कुछ नहीं मिलता, यानी महरूम होता है। बाकी तीन वही हालतें हैं जो बाप के थे। सुदुस, नंबर 3 सुदुस प्लस आसबा, नंबर 4 आसबा। सुदुस कब मिलता है? वही हालतें हमने पढ़ लिए थे। जब मरने वाले की मुजक्कर औलाद यानी बेटा पोता वगैरह हो, या मुजक्कर और मुअन्नस दोनों औलादें हो, बेटा बेटी या पोता पोती वगैरह हो, तो दादा को छठा हिस्सा मिलेगा। अगर जब मरने वाली की सिर्फ मुअन्नस औलाद यानी बेटी या पोती वगैरह हो तो सुदुस प्लस आसबा मिलेगा। जब मैयत की कोई औलाद ना हो तो आसबा होगा। मैयत की कोई औलाद ना हो तो आसबा होगा। ये बात समझ आ गई सबको? जरा कंफर्म कर दें कि समझ आ गई यहाँ तक। जी। अगर किसी को समझ नहीं आई, अभी आगे भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, तो तवज्जो करिए। अब मिसालों की तरफ आ जाए। मिसालें जो आप लोगों ने मेरे साथ ही हल करने हैं, मिसालें जो है आप लोगों ने मेरे साथ ही हल करने हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मिसाल नंबर 1 देखे। ये मैयत जो है वो हमने लेटा दी, एक शख्स का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। मैयत उसकी हमने क्या कर दी? बना दी। ठीक है। अब वरासा में कौन कौन अफराद है वो लिख लिए। एक दादा मौजूद है और आगे बाप मौजूद है। अब आप लोग मुझे बता दें दादा को यहाँ पे क्या मिलेगा। मरने वाले का बाप मौजूद है और मरने वाले का दादा मौजूद है, तो दादा को क्या मिलना चाहिए? अब ये हम लोगों ने पढ़ा, कौन बता सकता है? जी, महजूब होगा। दादा क्या होगा? महजूब होगा, महरूम होगा। हमने लिख लिया नीचे महरूम। बाप को क्या मिलेगा? अब बता दें। बाप को यहाँ पे क्या मिलेगा? दादा तो महरूम हो गया, बाप को क्या मिलेगा? जरा जल्दी बता दिया करें। जी, सुदुस मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। या आसबा होगा, क्या मिलेगा बताएं। बाप जो है यहाँ पे क्या होगा? आसबा होगा भाई। औलाद नहीं है। जब मरने वाली की औलाद ना हो, मैयत की कोई औलाद ना हो, बाप को क्या मिलता है? आसबा होता है। यहाँ पे औलाद है ही नहीं, तो बाप क्या होगा? आसबा होगा। जी। जरा तवज्जो से जहन के दरीचे खोल के आप लोगों ने मिसालें हल करनी है। मिसाल नंबर 2 देख के, मैयत हमने बना ली, दादा मौजूद है और इब्न यानी बेटा मौजूद है, तो अब दादा को क्या मिलेगा? जी, छठा हिस्सा मिलेगा, सुदुस मिलेगा, 1/6 मिल जाएगा। ठीक है। बेटे के अहवाल हमने पढ़े नहीं है अभी तक। बेटे के बारे में पढ़ा नहीं है तो उसके बारे में कुछ लिखा भी नहीं हमने यहाँ पे। मिसाल नंबर 3 देखें। मिसाल नंबर 3 किधर गया? मैयत को हमने लिटा दिया, दादा मौजूद है और इबन यानी बेटा भी मौजूद है, बेटी भी मौजूद है। अब दादा को क्या मिलेगा? जी आप बता दें। अब मिसाल नंबर 3 में क्या मिलेगा? यहाँ पे भी छठा हिस्सा मिलेगा। छठा सुदस प्लस आसवा नहीं, सिर्फ छठा हिस्सा मिलेगा। ठीक है। सिर्फ मुजक्कर औलाद हो या मुजक्कर और मुअन्नस दोनों औलादें हो तब सिर्फ छठा हिस्सा मिलता है। क्या मिलता है? छठा हिस्सा मिलता है। तो हमने बाप को क्या, दादा को छठा हिस्सा दे दिया। मिसाल नंबर 4 देखिए, मैयत हमने लिटा दी, दादा मौजूद है, बेटी मौजूद है, तो यहाँ पे दादा को क्या मिलेगा? सुदुस प्लस आसबा, क्योंकि मुअन्नस औलाद अब आ गई साथ में। बेटी के अहवाल हमने पढ़े नहीं, तो इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। मिसाल नंबर 5 देखें। एक शख्स का इंतकाल हो गया, मैयत मौजूद है, दादा मौजूद है,
और शोहर मौजूद है, एक खातून का इंतकाल हो चुका है, दादा मौजूद है और शोहर मौजूद है। अब ऐसी सूरत में दादा को क्या मिलना चाहिए? जी, दादा असबा होगा क्योंकि औलाद नहीं है। शोहर के बारे में पढ़ा नहीं है तो कुछ भी हम नहीं लिखेंगे। मिसाल नंबर 6 देखें। मिसाल नंबर 6, एक शख्स का इंतकाल हो गया, दादा मौजूद है और नवासा मौजूद है। अब मुझे बता दें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए। जी बता दें। जी, दादा मौजूद है, नवासा मौजूद है। बेटा ये सब मिलेगा या असबा होगा? जी असबा होगा क्योंकि नवासा जो है वो औलाद या वलद में शामिल नहीं है। तो ये दादा के जो है चार अहवाल आपके सामने बयान कर दिए। ठीक है, अब अरबी में हम बयान करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखना है। यहाँ पे दादा की तारीफ हम कर लेते हैं, वल जद्दु सहीह, जद सही जो है वह हुवल्लज़ी, वो होता है, ला तदखुलु के दाखिल नहीं होता, फी निस्बती ही उसकी निस्बत करने में, इलल मय्यित मैयत की तरफ उसकी निस्बत करने में शामिल नहीं होता, दाखिल नहीं होता, उम्मुन माँ यानी मुअन्नस का वास्ता दरमियान नहीं आता। वह हुआ कल अभी, और ये दादा जो है बाप की तरह होता है, यानी जिस तरह बाप के तीन अहवाल थे इसी तरह दादा के भी वही तीन अहवाल होते हैं। ठीक है, इल्ला फी अर्बाई मसाइला, सिवाय चार मसाइल के। बाप और दादा में चार मसाइल में फर्क है। बाप और दादा में चार मसाइल में फर्क आता है। इनकी तफसील हम पढ़ लेंगे, अभी आपके सामने ये लिखे हुए हैं चारों मसाइल जो है, ये आगे आ जाएंगे तो मैं फिर वहां वजाहत कर दूंगा। ठीक है, ये चारों मसाइल आगे आ जाएंगे, मैं वहां पे फिर वजाहत कर दूंगा कि बाप और दादा में जिन चार मसाइल में फर्क है वो कौन कौन से मसाइल हैं। ये मैंने लिखे हुए हैं, आगे इंशाल्लाह आते जाएंगे, फिर मैं हर एक की वजाहत करता जाऊंगा। ठीक है, अभी वजाहत इसलिए नहीं कर रहा था कि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो बाप के अहवाल भी हमने पढ़ लिए, दादा के अहवाल भी पढ़ लिए। बाप के तीन अहवाल क्या थे? सुदस, सुदस प्लस आसबा, सिर्फ आसबा। सुदस कब होता है? जब मुजक्कर औलाद हो या मुजक्कर और मुअन्नस दोनों औलादे हो। सुदस प्लस आसबा जब सिर्फ मुअन्नस औलाद हो। जब औलाद ही ना हो तो आसबा। दादा की भी ये तीन अहवाल भी यही है, और एक चौथी हालत भी है, अगर बाप मौजूद है तो दादा को कुछ नहीं मिलता, बाकी वही तीन अहवाल। ठीक है, और चार मसाइल में फर्क है। अब हम आगे चलते हैं। ज़वील फुरूज में दादा के अहवाल भी हमने पढ़ लिए। ज़वील फुरूज में हमने क्या कर दिए? दादा के अहवाल में पढ़ लिए। अब हमने माँ शरीक भाई और माँ शरीक बहनों का विरासत में कितना हिस्सा बनता है। माँ शरीक भाई है, क्या है? माँ शरीक भाई है। ठीक, इसी तरह माँ शरीक बहन है, इनको विरासत में क्या हिस्सा मिलता है? इनको विरासत में क्या हिस्सा मिलता है? माँ शरीक भाई किसे कहते हैं? मसलन एक खातून है, एक खातून है, ठीक है, उसने एक शख्स के साथ निकाह किया, उससे एक बेटा हो गया। अब उस शख्स का इंतकाल हो गया, इस खातून ने दूसरे शख्स से शादी कर ली, उससे भी एक बेटा हो गया। अब ये दोनों बेटे जो है आपस में एक दूसरे के लिए माँ शरीक भाई है, लेकिन बाप दोनों का मुख्तलिफ है। एक का बाप दूसरा है, दूसरे का बाप दूसरा है। ठीक, माँ शरीक भाई और बहन की वजाहत हो गई कि माँ जो है वो एक ही हो लेकिन बाप मुख्तलिफ हो। एक खातून ने मसलन एक शख्स से निकाह कर दिया अहमद के साथ, ठीक है, एक खातून ने निकाह कर दिया अहमद के साथ, उससे एक बेटा है जैद, उससे क्या है बेटा? जैद है। ठीक, ये खातून यहाँ पे मैं लिख दिया खातून यहाँ पे। अब ये अहमद का इंतकाल हो गया, अहमद का क्या हो गया? इंतकाल हो गया, ये एक्सपायर हो गया। इद्दत गुजार ली खातून ने यहाँ पे उमर के साथ निकाह कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये उमर से एक और बेटे का बेटा हो गया, वो
अ, शराफत लिख लेते हैं, शराफत। उसका नाम क्या है? शराफत। अब ये जैद और शराफत आपस में भाई है। माँ दोनों की क्या है? एक ही है, लेकिन जैद का बाप अहमद है, शराफत का बाप क्या है? उमर है। ठीक है, यानी बाप मुख्तलिफ है, माँ जो है दोनों की एक ही है, तो इसको माँ शरीक भाई कहते हैं। इसी तरह माँ शरीक बहन भी हो सकती है। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको? माँ शरीक भाई या माँ शरीक बहन के बारे में समझ में आ गया सबको? हाँ या ना में जवाब दे दिया करेंगे, समझ आ गई है? चले अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसका माँ शरीक भाई है या उसकी माँ शरीक बहन है, तो उसको विरासत में क्या हिस्सा मिलता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो माँ शरीक भाई को अखी खैफी कहते हैं। माँ शरीक भाई को क्या कहते हैं? अखी खैफी। अख का माना होता है भाई, और खैफी का माना होता है शरीक, माँ शरीक। ठीक है, इसी तरह अखुन लि उम्मिन भी कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम क्या है? अख लि उम्मिन। इसी तरह बहन को, माँ शरीक बहन को उख्त खैफी कहते हैं, या उख्त लि उम्मिन भी कहा जाता है, उख्त लि उम्मिन भी कहा जाता है अरबी जुबान में। और इन दोनों को औलादुल उम कहा जाता है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? माँ की औलाद। तो चाहे वो अखी खैफी है, उख्त खैफी है, औलादुल उम है, उनके कितने अहवाल हैं? तीन अहवाल है। कितने अहवाल? तीन अहवाल। नंबर एक, इनको सुदुस मिलेगा, यानी 1/6 हिस्सा मिलता है। नंबर दो, इनको सुलुस मिलता है, 1/3 मिलता है। नंबर तीन, ये महजूब होते हैं यानी महरूम होते हैं। कितना होते हैं? महरूम होते हैं। तो औलादुल उम के कितने अहवाल हो गए? तीन अहवाल। इनको सुदुस भी मिलता है, इसी तरह दूसरा लफ्ज हमारे पास आ गया अभी, सुलुस, यानी इनको सुलुस मिलेगा, 1/3 मिलेगा। और तीसरा, ये महरूम हो जाएंगे। सुदुस कब मिलता है? अगर मरने वाले का माँ शरीक भाई या बहन सिर्फ एक हो। ठीक है, मैयत की माँ शरीक भाई या बहन क्या हो? सिर्फ एक हो, तो इनको क्या मिलेगा? सुदुस मिलता है। चाहे वो एक बहन हो या एक भाई हो, तो इनको क्या मिलता है? सुदुस मिलता है। क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा। और सुदुस कब मिलता है? जब माँ शरीक भाई बहन एक से ज्यादा हो। माँ शरीक भाई या माँ शरीक बहन एक से ज्यादा हो, तो इनको सुलुस मिलता है। ठीक है, माँ शरीक भाई या माँ शरीक बहन जो है एक से ज्यादा हो, तो इनको सुलुस मिलता है। यहाँ तीन सूरतें बन सकती है। दोनों माँ शरीक भाई है, दोनों माँ शरीक भाई है, तो भी सुलुस मिल जाएगा, दोनों में बराबर तकसीम हो जाएगा। दोनों माँ शरीक बहनें हैं, तो ये सुलुस दोनों बहनों में बराबर तकसीम हो जाएगा। तीसरी सूरत, एक माँ शरीक भाई है, एक माँ शरीक बहन है। ठीक है, अब ये सुलुस दोनों में बराबर तकसीम होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई को डबल हिस्से मिल जाएंगे और बहन को एक हिस्सा मिलेगा, जिस तरह बाकी जगहों में होता है, बाकी मकामात में बेटे को दो हिस्से, बेटी को एक हिस्सा, या भाई को दो हिस्से और बहन को एक हिस्सा मिलता है, उसको लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन का उसूल कहते हैं। तो यहाँ पे माँ शरीक भाई बहनों में वो उसूल अप्लाई नहीं होगा, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन वाला उसूल अप्लाई नहीं होगा। बल बल्कि दोनों में ये सुलुस जो है बराबर तकसीम होगा। नंबर तीन, ये महरूम होंगे। नंबर तीन, ये महरूम होंगे कब? जब मैयत की औलाद हो। जब मैयत की औलाद हो, तो ये महरूम हो जाएंगे। इनके साथ बेटा आ जाए, बेटी आ जाए, पोता आ जाए, पोती आ जाए, तो ये महरूम हो जाएंगे। इसी तरह बाप आ जाए, तब ये महरूम होंगे। दादा आ जाए, तब भी ये महरूम। मैयत की औलाद हो या बाप दादा में से कोई आ जाए, तो ये महरूम हो जाएंगे, इनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। इनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। ये जरा बात के बारे में कंफर्म कर दे, आ रही है?
चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो औलादुल उम के तीन अहवाल हो गए कि इनको छठा हिस्सा मिलता है अगर मैयत या मरने वाले का माँ शरीक भाई या बहन सिर्फ एक हो। ठीक है, चाहे एक भाई है या एक बहन है तो इनको छठा हिस्सा मिलता है। अगर माँ शरीक भाई या बहनें एक से ज्यादा हो तो इनको सुलुस मिलता है। फिर मैंने बताया कि तीन सूरतें बन सकती है। दोनों माँ शरीक भाई है तब भी सुलुस मिलेगा और दोनों में बराबर तकसीम होगा। दोनों माँ शरीक बहनें हैं तब भी इनको सुलुस मिलेगा और दोनों में बराबर तकसीम होगा। तीसरी सूरत, एक माँ शरीक भाई है एक माँ शरीक बहन है तब भी इन दोनों को सुलुस मिलेगा और दोनों में ये सुलुस बराबर तकसीम होगा। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन वाला उसूल अप्लाई नहीं होगा। और नंबर तीन, ये महरूम होंगे जब मैयत की औलाद हो या बाप दादा वगैरह में से कोई हो। यहाँ पे नोट के तहत एक बात लिखी है, ये नंबर दो से मुतालिक है कि अगर औलादुल उम एक से ज्यादा हो तो सुलुस सब में बराबर तकसीम होगा। सुलुस सब में क्या होगा, बराबर तकसीम होगा। अब मिसालों की तरफ आ जाए। मिसाल नंबर एक शख्स का इंतकाल हो गया, आंखें खैफी है यानी माँ शरीक भाई है, तो क्या मिलेगा, एक है सुदुस मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। मिसाल नंबर दो देखिए, एक उख्त खैफी है, एक उख्त खैफी है तो माँ शरीक बहन को क्या मिलेगा, सुदुस मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। क्या मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। नंबर तीन देखिए, एक शख्स का इंतकाल हो गया, आंखें खैफी, ये सही तरह नहीं लिखा हुआ, ये गलत लिखा हुआ, आंखें खैफी। ठीक है, एक आंखें खैफी है एक उख्त खैफी है, यहाँ पे क्या मिलेगा, दो आ गए तो इनको क्या मिलेगा, मुझे बता दें। सुलुस, और सुलुस भी क्या होगा, इनमें बराबर तकसीम होगा, ये सुलुस दोनों में क्या होगा, बराबर बराबर तकसीम होगा। ठीक है। और मिसाल नंबर चार देखें। मिसाल नंबर चार, एक शख्स का इंतकाल हो गया, दो अखी खैफी यानी दो माँ शरीक भाई है, यहाँ पे क्या मिलेगा, सुलुस मिलेगा, दोनों में बराबर तकसीम हो जाएगा। मिसाल नंबर पांच देखें, एक अखी खैफी है और एक बेटा है, एक माँ शरीक भाई है और एक बेटा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माँ शरीक भाई को, अखी खैफी को क्या मिलेगा, महरूम हो जाएगा, महरूम हो जाएगा। ठीक है, महजूब। मिसाल नंबर पांच फिर वही लिखा है, ये मिसाल नंबर छह होना चाहिए। तो मिसाल नंबर छह देखिए, आखिर खैफी है और बाप है, तो यहाँ पे आखिर खैफी क्या होगा, महरूम होगा। आखिर खैफी क्या होगा, महरूम होगा। बाप को क्या मिलेगा ये आप बता दें, बाप को क्या मिलेगा, जी बता दें, बाप को कमाल सुदुस भी असबा भी। बाप आसबा होगा, जब औलाद ना हो बाप क्या होता है, असबा होता है। मतलब यार आप लोगों ने नहीं किया, मालूम शुद कि हाजी नेस्त। बाप क्या होगा, आसबा होगा, बाप आसबा होगा। ठीक है, ये अहवाल सही तरह याद कर लेना चाहिए आप लोगों को। अब एक और मिसाल मैं लिखने लगा हूँ, आप लोगों ने जवाब देना है, जल्दी जल्दी जवाब दे दें। आखिर खैफी है, क्या है, ये आखिर खैफी मैंने खाली का, खैफी नहीं मुकम्मल नहीं लिखा, खाली का आखिर खैफी है और नवासा है, और नवासा है। अब आखिर खैफी को क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, आखिर खैफी को क्या मिलना चाहिए, आखिर खैफी है और नवासा है, तो आखिर खैफी को क्या मिलना चाहिए, जी सुदुस मिलेगा। नवासे की वजह से ये महरूम नहीं होगा, नवासे की वजह से ये महरूम नहीं होगा क्योंकि वो औलाद में शामिल नहीं है। तो ये औलादुल उम के अहवाल जो है ये भी आप लोगों को समझा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ भी गई होगी। ठीक है, अब अरबी में इसी को बयान करेंगे। ठीक है, अरबी में किस तरीके से याद करना है। व अम्मा लि औलादिल उम्मी फलहु अहवाल सलासन, व अम्मा और बहरहाल, लि औलादिल उम्मी, औलादुल उम के लिए, माँ शरीक भाई बहनों के लिए, फलहु उनके लिए, अहवाल सलासन, तीन अहवाल है उनके लिए। कितने अहवाल है, तीन अहवाल है। नंबर एक, असुदुस लिल वाहिद, छठा हिस्सा मिलेगा एक के लिए। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, चाहे एक भाई हो या एक बहन हो, हर एक को क्या मिलता है, छठा हिस्सा मिलता है। और नंबर दो, वसुलुस लिल इस्नैनि फसाइदन, वसुलुस, सुलुस मिलेगा, एक तिहाई मिलेगा, लिल इस्नैनि दो, दो के लिए, फसाइदन या दो से ज्यादा के लिए। दो भाई हो या
दो से ज्यादा हो, ठीक है, उनको क्या मिलता है? सुलुस मिलता है। यहाँ पे एक उसूल बताया, ज़ुकूरुहुम, इनके मुज़क्कर जो है यानी बाई जो है, व इनासुहुम, और इनके मुअन्नस जो है यानी माँ शरीक बहन जो है। ज़ुकूरुहुम से मुराद इनके मुज़क्कर यानी माँ शरीक बाई, व इनासुहुम, और इनके मुअन्नस यानी माँ शरीक बहन जो है। फिल किस्मती, फिल किस्मती, किस्मत में यानी तकसीम होने में भी बराबर है, वल इस्तिहकाक, और मुस्तहिक होने में भी बराबर है। किस्मत और इस्तिहकाक दोनों में बराबर है। इस्तिहकाक को पहले समझ लेते हैं। इस्तिहकाक को पहले हम समझ लेते हैं। इस्तिहकाक का मतलब ये है कि जिस तरह बाई जो है, अगर अकेला शरीक बाई आ जाए तो भी छठा हिस्सा मिलता है, यानी छठे हिस्से का मुस्तहिक होता है। इसी तरह अगर माँ शरीक बहन आ जाए तो भी वो छठे हिस्से की मुस्तहिका बनेगी, यानी कि हिस्सा कम हो जाएगा। मतलब ये कि माँ शरीक भाई और बहन जो है छठे हिस्से के मुस्तहिक होने में बराबर है, कोई फर्क नहीं है। और फिर किस्मत ही, किस्मत से क्या मुराद कि अगर एक माँ शरीक भाई है और एक माँ शरीक बहन है, दोनों को सुलुस मिलता है। ये सुलुस दोनों में बराबर तकसीम होता है। सुलुस दोनों में क्या होता है? बराबर तकसीम होता है। तो ये किस्मत से ये मुराद है, ठीक है। ज़ुकूरुहुम बैनातुहुम फिल किस्मति वल इस्तिहकाक़ि सवाउन, इसकी वजाहत आपको बता दी। और मैंने ये भी बता दिया कि यहाँ पे वलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का उसूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। आगे चलिए। वयस्कुतून बिल वलदी, वयस्कुतून, सकत यस्कुत का माना होता है गिरना, महरूम होना, और ये साकित हो जाएंगे, गिर जाएंगे, महरूम हो जाएंगे। इसके जरिए से, बिल वलद, वलद के जरिए से, वलदिल इब्नी, इबन की वलद के जरिए से, यानी बेटे पोते या बेटी पोती वगैरह के जरिए से महरूम हो जाएंगे, ठीक है। वह इन सफल, इसी तरह नीचे तक, वबिल अबी, बाप के जरिए से भी महरूम हो जाएंगे, वल जद, और दादा के जरिए से भी। वल जदी बिल इत्तिफाक, इत्तिफाक की कैद बढ़ाई है। इसका मतलब ये है कि दादा में दादा के जरिए से बिल इत्तिफाक महरूम होता है, किसी का इख्तिलाफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे किसी का इख्तिलाफ नहीं है। तो ये माँ शरीक भाई और बहनों का विरासत में हिस्सा आपको बता दिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे, शोहर का विरासत में हिस्सा। हमने पढ़ा था ज़वील फुरूज कुल 12 है, 4 मर्द 8 औरतें। 4 मर्दों में बाप, दादा, माँ शरीक भाई और शोहर। तो ये शोहर का विरासत में क्या हिस्सा बनता है वो आपको बता देंगे। यानी खातून का इंतकाल हो जाए, शोहर मौजूद हो तो क्या हिस्सा मिलेगा। शोहर मौजूद हो तो क्या हिस्सा मिलेगा। तो शोहर के दो अहवाल हैं। शोहर को या तो निस्फ मिलता है यानी आधा हिस्सा मिलता है, या शोहर को रुबा मिलता है यानी चौथा हिस्सा मिलता है। शोहर को या तो निस्फ मिलेगा या चौथा हिस्सा मिलेगा। शोहर को निस्फ मिलेगा या चौथा हिस्सा मिलेगा। निस्फ कब मिलेगा? मरने वाली बीवी की औलाद ना हो। जब बीवी की औलाद ना हो और उसका इंतकाल हो जाए तो शोहर को क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। अगर मरने वाली बीवी की औलाद हो, चाहे इसी शोहर से है या दूसरे से, तो ऐसी सूरत में मर्द को, शोहर को क्या मिलेगा? चौथा हिस्सा मिलेगा। तो शोहर के दोनों अहवाल समझ में आ गए। निस्फ कब मिलता है? जब बीवी की औलाद ना हो। रुबो कब मिलता है? जब बीवी की औलाद हो। ठीक, बात समझ आ गई। मिसालों की तरफ आ जाए। एक शख्स, खातून का इंतकाल हो गया, मैयत मौजूद है, शोहर मौजूद है। मैयत हमने बना दी, शोहर मौजूद है और बाप मौजूद है। शोहर को यहाँ पे क्या मिलेगा? आप बता सकते हैं? जी, शोहर को यहाँ पे निस्फ मिलेगा। बाप को क्या मिलेगा? बाप आसबा होगा क्योंकि औलाद नहीं है। मिसाल नंबर 2 देखें। एक खातून का इंतकाल हो चुका है, मैयत हमने बना ली, शोहर मौजूद है, दादा मौजूद है। शोहर को क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा क्योंकि औलाद नहीं है। दादा को क्या मिलेगा? दादा को क्या मिलेगा? दादा आसबा होगा क्योंकि औलाद नहीं है। मिसाल नंबर 3 देखिए, खातून का इंतकाल हो चुका है, शोहर मौजूद है और बेटी मौजूद है। तो शोहर को क्या मिलेगा? रुबा मिलेगा। शोहर को क्या मिलेगा? रुबा मिलेगा।
मिसाल नंबर 4 देखे, खातून का इंतकाल हो गया, शोहर मौजूद है और बेटा मौजूद है, तो शोहर को क्या मिलेगा? रुबा मिलेगा, क्योंकि औलाद नहीं है। औलाद मौजूद है तो रुबा मिलता है। औलाद मौजूद हो तो क्या मिलता है? रुबा मिलता है। खातून का इंतकाल हो गया, शोहर मौजूद है और पोता मौजूद है या पोती मौजूद है। पोता मौजूद है या पोती मौजूद है, तो शोहर को यहाँ पे क्या मिलेगा? पोता मौजूद है या पोती मौजूद है, रुबा मिलेगा। पोता पोती ये भी औलाद में शामिल है। मिसाल नंबर 6 देख के, खातून का इंतकाल हो चुका है, शोहर मौजूद है, नवासा या नवासी मौजूद है। अब यहाँ पे शोहर को क्या मिलेगा? नवासा या नवासी मौजूद है, तो यहाँ पे शोहर को क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा, क्योंकि नवासा नवासी ये औलाद में शामिल नहीं है। तो ये शोहर के दो अहवाल आपके सामने बयान कर दिए। अरबी में अभी इसको हम देखेंगे। ये क्या? वलिज़्ज़ौज हालतानी, शोहर के लिए दो हालतें हैं। अन्निस्फ़ इंद अदमिल वलद व वलदिल इब्न व इन सफल, ये शोहर को क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा, आधा हिस्सा मिलेगा। इंद अदमिल वलद व वलदिल इब्नी, यानी औलाद ना होने की सूरत में, इस तरह नीचे तक। और वरुबु इंद अल वलद व वलदिल इब्नी व इन सफल, रुबु मिल जाएगा जब औलाद मौजूद हो। ये शोहर के दोनों अहवाल आपको बता दिए। अब बीवियों का विरासत में कितना हिस्सा बनता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी शोहर का इंतकाल हो जाए तो बीवियों को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है। बीवियों को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है? तो जौजात यानी बीवियों के भी दो अहवाल है। नंबर एक रुबु, नंबर दो सुमुन। यानी बीवियों को रुबु मिलेगा, 1/4 मिल जाएगा। बीवियों को क्या मिलेगा? रुबु मिल जाएगा, या सुमुन आठवां हिस्सा मिलेगा। चौथा हिस्सा कब मिलता है? जब मरने वाले शोहर की औलाद ना हो, तब बीवी को या बीवियों को चौथा हिस्सा मिलता है। बीवी एक है या दो बीवियां हैं, औलाद नहीं है शोहर की, तो चौथा हिस्सा मिलेगा, और ये चौथा हिस्सा दोनों बीवियों में या तीनों बीवियों में या चारों बीवियों में बराबर तकसीम होगा। ऐसा नहीं है कि हर बीवी को अलग अलग से चौथा हिस्सा मिल जाए। अगर मरने वाले शोहर की कोई औलाद है, चाहे इसी बीवी से है या दूसरी से, तो क्या मिल जाएगा? सुमन मिल जाएगा। बीवी को क्या मिलेगा? सुमन मिल जाएगा, चाहे एक बीवी है, दो है, तीन है, चार है, सब में बराबर ये सुमन क्या होगा? तकसीम होगा। बीवी एक हो या एक से ज्यादा, रुबो और सुमन सब में सब बराबर की शरीक होंगी। ऐसा नहीं है कि यार एक को अलग अलग से मिल जाए। मिसालों की तरफ आ जाए। मिसाल नंबर एक, जोजा मौजूद है और बाप मौजूद है, तो जोजा को क्या मिलेगा? बताएं। जोजा को क्या मिल जाएगा? रुबो मिल जाएगा, चूंकि औलाद नहीं है। बाप को क्या मिलेगा? बाप आसबा होगा। मिसाल नंबर दो, मैयत है, दो जौजात है, दो बीवियां हैं और दादा मौजूद है, दो बीवियों को क्या मिलेगा? बताएं, डरना नहीं है, हिस्सा बता दें, इनका क्या हिस्सा बनेगा? रुबो। ये रुबो इनमें बराबर तकसीम होगा। रुबो इनमें क्या होगा? बराबर तकसीम होगा। और दादा को क्या मिलेगा? आसबा होगा। मिसाल नंबर 3 देखिए, जौजा यानी एक बीवी है और बेटी मौजूद है, तो बीवी को क्या मिलेगा? बीवी को क्या मिलेगा? सुमुन मिल जाएगा। सुमुन मिल जाएगा, ठीक है। और मिसाल नंबर 4 देखें, एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी दो जौजात यानी दो बीवियां हैं और बेटा है, तो क्या मिलेगा? दो बीवियों को सुमुन मिल जाएगा, और ये सुमुन दोनों में बराबर तकसीम होगा। मिसाल नंबर 5 देखिए, एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी बीवी मौजूद है और पोता या पोती में से कोई मौजूद है, तो जोजा को क्या मिलेगा? सुमुन मिल जाएगा, ठीक है। जोजा को क्या मिलेगा? सुमुन। मिसाल नंबर 6 देखिए, एक शख्स का इंतकाल हो गया, जोजा मौजूद है और नवासा या नवासी में से कोई है। अब यहाँ पे जोजा को क्या मिलेगा? यहाँ पे जोजा को रुबा मिल जाएगा, क्योंकि नवासा या नवासी
औलाद में से नहीं है, ये औलाद में से नहीं है। तो ये आपके सामने जौजात के अहवाल भी बता दिया। अरबी में आप देखते हैं वली जौजात हालतानी, बीवियों के लिए दो हालतें हैं। और रुबु लिल वाहिदती, रुबु जो है एक के लिए है, फसाइदतन या एक से ज्यादा के लिए, इंद आदमिल वलद जब वलद ना हो, वलद इबन यानी इबन का वलद भी ना हो, इन सफल इस तरह नीचे आते जाए। और वसुमन इंद वलद व वलद इब्न व इन सफल, ये सुमन मिलेगा औलाद होने की सूरत में। अब आखिरी हालत आपके सामने जिक्र करने लगे हैं, और वो है बेटी का विरासत में हिस्सा। बेटी का विरासत में कितना हिस्सा बनता है, फिर खत्म करेंगे। बेटी का विरासत में कितना हिस्सा बनता है, तो बेटियों के तीन अहवाल है। बेटियों के कितने अहवाल है? तीन। नंबर एक, बेटियों को तीन में निस्फ मिल जाएगा। निस्फ मिलता है, आधा हिस्सा मिलता है। सुलुसान यानी 2/3 मिलता है। नंबर तीन, ये आसबा होते हैं। बेटी के तीन अहवाल है, या तो निस्फ मिलेगा, या सुलुसान मिलेगा, या आसबा होंगी। निस्फ कब मिलेगा? जब बेटी एक हो। जब बेटी एक हो तो क्या मिलेगा? उसको निस्फ मिल जाएगा। जब बेटियां दो या दो से ज्यादा हो, तब इन दोनों को क्या मिलता है? सुलुसान 2/3 मिलता है। असबा कब होगा? कब होगी? जब बेटी के साथ बेटा हो तो बेटी असबा हो जाएगी। बेटी के साथ बेटा हो तो बेटी क्या हो जाएगी? असबा हो जाएगी। यानी बेटी को दो हिस्से और बेटी को एक हिस्सा दिया जाएगा। बेटे को दो हिस्से और बेटी को एक हिस्सा दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन का उसूल जो है अप्लाई होगा, लागू होगा। मिसालों से समझे अभी, मिसालों को हम हल करेंगे। मिसाल नंबर एक, इंतकाल हो गया, बेटी मौजूद है, बाप मौजूद है। अब यहाँ पे बेटी को क्या मिलना चाहिए? निस्फ। हमने पढ़ा कि जब एक हो तो निस्फ मिलता है। बाप को क्या मिलेगा? सुदुस प्लस आसबा, क्योंकि मुअन्नस औलाद है। मिसाल नंबर दो देखिए, एक शख्स का इंतकाल हो गया, दो बेटियां मौजूद है, और जद यानी दादा मौजूद है। जद यानी दादा मौजूद है। दो बेटियों को क्या मिलेगा? सुलुसान मिल जाएगा। सुलुसान। दादा को क्या मिलेगा? सुदुस प्लस आसबा। सुदुस प्लस आसबा, क्योंकि मुअन्नस औलाद है। मिसाल नंबर तीन देखिए, मैयत है, बेटा मौजूद है, बेटी मौजूद है। तो बेटा क्या होगा यहाँ पे? बेटा बेटी दोनों क्या हो जाएंगे? आसबा हो जाएंगे। यानी बेटे को दो हिस्से, बेटी को एक हिस्सा मिल जाएगा। बेटी को क्या मिलेगा? एक हिस्सा मिल जाएगा। अरबी में इसी को बयान किया, वलिल बिनती सलासतु अहवालिन, वलिल बिनती और बेटी के लिए तीन अहवाल है। नंबर एक, निस्फ लिल वाहिदा, निस्फ मिल जाएगा एक बेटी के लिए, वाहिदा के लिए जब एक हो तो निस्फ मिलता है। वसुलुसान लिल इस्नतैन, सुलुसान यानी 2/3 मिल जाएंगे। लिल इस्नतैन, दो बेटियों के लिए, फसाइदतन और दो से जायद के लिए। वमाल इब्न लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, इब्न के साथ, बेटे के साथ, लिज़्ज़करि मुज़क्कर के लिए यानी बेटे के लिए, मिसल, मिसल का माना होता है बराबर, हज का माना होता है हिस्सा, उनसयैन दो बेटियों का हिस्सा, दो बेटियों के हिस्से के बराबर होगा। बेटे के लिए दो बेटियों के हिस्से के बराबर हो गए, यानी बेटे को दो हिस्से और बेटी को एक हिस्सा मिल जाएगा। तो ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह दविल फुरूज में से कितने अहवाल हमने बयान कर दिए। बाप के अहवाल बयान कर दिए, दादा के अहवाल बयान कर दिए, माँ शरीक भाई के बयान कर दिए, माँ शरीक बहन के बयान कर दिए, शोहर के बयान कर दिए, बीवियों के बयान कर दिए, और बेटी के अहवाल बयान कर दिए। मतलब हमने सात बयान कर दिए, सात जविल फुरूज हमने बयान कर दिए, पांच बाकी है। पोती जो है उसके अहवाल बाकी है, हकीकी बहन, बाप शरीक बहन, माँ और वालदा, उनका अहवाल बाकी है। वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारे लिए इस कोर्स को आसान बनाए, हमारे लिए सीखना, समझना और याद रखना, और इल्म दीन की खिदमत करना, इल्म दीन की तालीमात को आम फहम करके आगे पेश करना और तबलीग करना आसान बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमें अपने वालिदैन, असातिज़ा, बड़ों के लिए सदक़े जारिया बनाए, उनकी नक्श कदम पे चलाए, और हमारे बच्चों को, तलबा को और साथियों को
ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔